خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلے پیش ہیں سرخیاں. سکاسٹ کشمیر کا چھٹا سالانہ کنوکیشن آج ہوا منعقد. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کا تقریب سے خطاب. وادی کے مختلف علاقوں میں محرم الحرام کے سلسلے میں علم شریف کے جلوس برآمد. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے رواں دواں. اب تک 26,475 یاتریوں کا پوتر گفا میں درشن. اور وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے ٹرینیڈاڈ و ٹوبیگو میں بھارتی نژاد افراد کی چھٹی نسل کے شہریوں کے لیے OCI کارڈز کا اعلان. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سکاسٹ کشمیر نے آج مین کیمپس شالیمار میں کامیابی کے ساتھ یونیورسٹی کے چھٹے کنوکیشن کی میزبانی کی. تقریب پر کسانوں کی بہبود اور زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. اس کے علاوہ تقریب پر یونیورسٹی کے چانسلر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، یونیورسٹی کے پرو چانسلر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے. کنوکیشن کی شروعات بایو ڈائیورسٹی پارک میں پودے لگانے سے کی گئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے طلباء میں اسناد تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کا چھٹا کنوکیشن تعلیم کا اختتام نہیں ہے بلکہ درس و تدریس کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں مرکزی حکومت جموں کشمیر کی پائیدار ترقی کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امن کے منترا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور نفرت اور دوریوں کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے طلباء سے تاکید کی کہ وہ زراعت میں اختراع پر زور دیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایگری سٹارٹ اپس کا قیام عمل میں لائیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے LG نے یونیورسٹی کو باصلاحیت اور مقابلہ جاتی افرادی قوت تیار کرنے پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں زرعی سیکٹر میں نمایاں تبدیلی لانے میں یونیورسٹی کا اہم رول ہے. تقریب پر LG نے طلباء بالخصوص طالبات کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور درس و تدریس کے میدان میں ان کی شاندار کارکردگی کی سراہنا کی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ یونیورسٹی کے گریجویٹ طلباء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. انہوں نے طلباء سے کہا کہ دنیا کو ان کی تعلیم و تجربے کی ضرورت ہے اور انہیں ہمت، کردار اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. تقریب پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے یونیورسٹی کی حصولیابیوں سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی. بعد میں مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے سکاسٹ کے ہارٹیکلچر ریسرچ اور ڈیمونسٹریشن بلاکس کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے وہاں ہارٹیکلچر سے منسلک اختراعی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کے متعلقین سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کی طرف سے ابھارے گئے کئی مسائل کو غور سے سنا، جس کے جواب میں مرکزی وزیر نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا. اس موقع پر انہوں نے ہارٹیکلچر سیکٹر میں کئی سائنسی حصولیابیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے سیب کے اعلیٰ پیداوار والی پیڑوں کی نرسری کا بھی جائزہ لیا. مرکزی وزیر نے طلباء کے ساتھ بھی بات چیت کی جو ملک کے مختلف حصوں سے سکاسٹ کشمیر میں زیر تعلیم ہیں. جموں کشمیر رورل لائیولیہڈ مشن نے آج سری نگر میں خواتین سیلف ہیلپ گروپ کی حصولیابیوں کے اعتراف میں ایک لکھپتی دیدی سمیلن کا انعقاد کیا، جس میں زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے. تقریب پر جموں کشمیر کے کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود تھے. اس موقع پر مرکزی وزیر نے اپنے خطاب میں اعتراف کیا کہ خواتین سماج کے بدلاؤ کے معمار ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت ہند دیہی خواتین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے عزم کیے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے سفر میں حکومت ہر وقت ان کے ساتھ ہے. خبریں جاری ہیں، پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.
नवास रसूल इमाम आली मकाम सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मैदान करबला के दीगर शहीदों की अजीम कुर्बानियों को याद करने और उन्हें खराज अकीदत अदा करने की गर्ज से वादी कश्मीर में अलम शरीफ के जुलूस लगातार बरामद हो रहे हैं, जिनमें अज़ादारों की भारी तादाद शिरकत करके मरसिया और नवाखानी कर रहे हैं। जुलूसों में उलमाए किराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की इस्लाम के तई अजीम कुर्बानियों को उजागर कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज श्रीनगर के गुरु बाजार से डलगेट तक आज़ादारी का जुलूस निकाला गया। हजारों की तादाद में आज़ादारों ने इस मातमी जुलूस में शिरकत की, जिनमें से बेशतर आज़ादारों ने सियाह कपड़े पहने हुए और हाथों में बैनर और झंडे उठाए हुए करबला के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। सूबाई इंतजामिया ने जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए हिफाजत के सख्त इंतजाम किए थे और सिविल लाइन्स के बेशतर बाजारों में सुबह सवेरे से ही पुलिस, CRPF और SSB के जवान तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों, रजाकार तंजीमों और महिला कमेटियों ने पीने के पानी, खाने पीने की चीज़ें और तिबी सहूलियात आज़ादारों के लिए दस्तियाब रखी थीं। इस मातमी जुलूस में सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बिरदी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू, SSP श्रीनगर संदीप चक्रवर्ती ने जुलूस में शामिल होकर आज़ादारों में पानी और दूसरी चीज़ें तकसीम की। आशुरा के सिलसिले में आज खानकाह पांपोर में नमाज जुमा के दौरान मीर वाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने आशुरा की फजीलत और शोहदाए करबला की पाक अजीम शहादत पर वाज़ तबलीग फरमाया। उन्होंने कहा कि करबला के मैदान में बातिल के खिलाफ नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर शोहदा ने अदल इंसाफ, मसावत और इंसानियत की बका और इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियां की तरफ से पार्लर बड़गाम में आज अलम शरीफ के जुलूस बरामद किए गए। बड़गाम में अलम शरीफ के सबसे बड़े जुलूस की क़यादत आगा सैयद हसन अलमौसवी असफ़ी ने की। इस जुलूस में भारी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इसके अलावा छत्रगाम, आस्तानपोरा, सिकंदरपोरा, खाग और दीगर शिया आबादी वाले इलाकों में भी अज़ादारी के जुलूस बरामद किए गए। दरियासना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चोटा बाजार से डलगेट तक बरामद होने वाले जुलूस में शामिल अज़ादारों के लिए रिफ्रेशमेंट कैंपों का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के कई सरकर्दा लीडर मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कारकुनों से तलकीन की कि वह ऐसे मौक़ों पर लोगों की राहत रसानी के लिए काम करें। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के दोनों रास्तों से खुश असलूबी से जारी है। इस सिलसिले में आज पहलगाम की नुनवन बेस से यात्रियों का दूसरा जत्था शिवलिंगम के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। इस मौके पर यात्रियों में खासा जोश पाया जा रहा था। यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए इंतजामिया की तरफ से खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों की सलामती के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। कल से शुरू हुई यात्रा के आज दूसरे दिन अब तक 26,475 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इसी दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 6,000 यात्रियों का तीसरा काफिला श्रीनगर की ओर रवाना हुआ। दरियासना यात्रियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ महकमों की तरफ से पहलगाम में स्टॉल लगाए गए हैं और उन्हें मुफ्त में मशरूबात फराहम की जा रही हैं। इस इक़दाम पर यात्रियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस खैर सगाली जज्बे से महकमों के मुलाजमीन और यात्रियों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद तक़वियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी कायल हुए हैं और इसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालतल में नए तामीर शुदा यात्री निवास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार यात्रियों की सहूलियात, हिफाजत और सलामती के लिए वादाबंद है। उन्होंने यात्रा के हवाले से की गई तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस यात्री निवास से श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने इस यात्री निवास की तामीर करने के लिए मुतलका महकमों की सताइश की। LG के हमरा MLA कंगन मियां मेहर अली, DDC चेयरपर्सन नुज़हत मुश्ताक और दीगर जिला अफसरान थे। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र हिफाजती अमले ने आज यात्रियों की सलामती के लिए पांपोर रेलवे स्टेशन पर एक मुश्तरका मॉक ड्रिल का एहतमाम किया। यह मॉक ड्रिल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस पांपोर की सरबराही में मुनक्किद हुई, जिसमें 8 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, CRPF और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने अपने ताउन पेश किया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं सालगिरह के सिलसिले में जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत की। वाज़ेह रहे कि बीजेपी की तरफ से सेमिनारों, नुमाइशों, फिल्म स्क्रीनिंग और दीगर प्रोग्रामों के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनकी शख्सियत के बारे में जानकारी फराहम की जाती रही है। मीटिंग में बीजेपी के तर्जमानों के अलावा सीनियर पार्टी फंक्शनरीज, सीनियर लीडर्स, जिला सदूर, मोर्चा इंचार्जेस और प्रभारियों ने शिरकत की। सीपीआईएम कुलगाम यूनिट की जानिब से आज रेस्ट हाउस कुलगाम में एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद आरटीआई कानून के बारे में जानकारी फराहम करना था। वर्कशॉप में भारत के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह ने आरटीआई कानून की अहमियत पर रोशनी डाली। इस वर्कशॉप में सीपीआईएम के सीनियर लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के डायरेक्टर वेंकटेश नायक के अलावा कई दीगर सरकर्दा आईटीआई शख्सियतें मौजूद थी। एशिया के दूसरे सबसे बड़े मीठे पानी के झील वुलर में 30 साल के बाद कमल के फूल खिले हैं, जिसकी वजह से नदरू की पैदावार में इजाफा होने के साथ साथ रोजगार के मौके फराहम होने का इम्कान है। इस झील के आसपास रहने वाले बाशिंदों ने डीडी न्यूज को बताया कि वुलर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से मज़कूरा झील की शान रफ्ता बहाल करने के बाद इस तरह के इम्कानात जाहिर हुए हैं। कश्मीर मरकज़ अदब सकाफत चराग शरीफ की जानिब से आज मारूफ कश्मीरी शायर और अदबी शख्सियत अली मोहम्मद शहबाज को उनकी 29वीं बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में डाकबंगला चराग शरीफ में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अदबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान महफिल मुशायरा और मकालात पेश किए गए। गुरु हरगोबिंद जी की 430वीं सालगिरह के मौके पर आज टैगोर हॉल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से एक पंजाबी कवि दरबार का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मारूफ पंजाबी मौके पर कश्मीर एजुकेशन सोसाइटी के सदर एस ओपिंदर सिंह मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इंदिरा नगर के अंदरूनी वार्डों में नाकिस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां के मकामी बाशिंदे तरह तरह की परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। मकामी बाशिंदों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुतलका हुक्काम को अगरचे कई बार इस बारे में आगाह किया गया, ताहम वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने हुक्काम से इन सड़कों और ड्रेनेज निज़ाम की फौरी तजदीद व मरम्मत की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भारत निजात अफराद की छठी नस्ल के शहरियों के लिए भारत के बैरून मुल्क शहरियों के OCI कार्ड्स का ऐलान किया है, जिससे वो भारत में बगैर किसी बंदिश के रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। आज सुबह ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में मुनक्कदा भारतीय बिरादरी की एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने बिरादरी की हौसला अफजाई की कि वो अपने आबाई वतन का दौरा करें और भारत के साथ अपने रिश्तों में गहराई पैदा करें। वादी इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसकी वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है और लोग बिलखसूस बुजुर्ग और बच्चे घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। खुश्क मौसम की वजह से वादी के कई इलाकों में पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। दरियासना महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 6 से 8 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जबकि 9 से 10 जुलाई तक मतला अबुरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।